the following statement is incorrect. So the question is asking about the incorrect statement. Now, the first statement is that the Multi-State Cooperative Society Act of 2002 was passed by the Parliament. Now, this is a correct statement because the act is a central act passed by the Union Parliament. The second question, second statement is that the Act of 2002 was passed to replace the Act of 1984. Now, this is also correct statement because the 1984 Act was being replaced by this new act. Will come on third बाद में. Let's see the fourth statement. Now the fourth statement is that the central registrar is appointed by the union government. Now this is also a correct statement, but if you see the third statement, which is says that the word limited must be prefixed to every multi-state society registered under the act. Now this statement is incorrect. Why? Because this is not prefixed, it is suffixed. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, ये पहले नहीं लिखा जाता है, ये बाद में लिखा जाता है. सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम के बाद लिमिटेड ऐड किया जाता है. लिमिटेड जो है वो पहले ऐड नहीं किया जाता. So that is the reason that the second question will also have the correct answer, that is C. Now, if we look at the third question, which says whose powers can be delegated by the central government under the Act of 2002. Now the question is simply asking you that given the four options, whose powers can be delegated by the central government. Now this question is very straightforward. Its correct answer is central registrar. सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो पावर्स होते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को या यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसर को हम दे सकते हैं. So the third question will have the correct answer, that is B, central register. Now the fourth question asks you the cooperative principles under the act are given in. Now there are four options: section 2, first schedule, second schedule और section 1. Now ये क्वेश्चंस जो हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर आप ध्यान से क्लासेस को दोबारा पढ़ेंगे या ध्यान देंगे थोड़ा जो भी हमने डिस्कशन किया है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं में मिल जाएंगे. तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है कि भाई जो आपके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ दिए हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं कि सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं कि सेक्शन 1 में दिए हुए हैं या सेक्शन 2 में दिए. तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं. ठीक है, आपके इस एक्ट में दो शेड्यूल्स हैं. फर्स्ट शेड्यूल में आपके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और सेकंड शेड्यूल में आपके जो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके बारे में बताया गया. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जो भी सोसाइटीज के नाम हमारे एक्ट के सेकंड शेड्यूल में दिए होते हैं उनको हम नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पे डील करते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए चार ऑप्शंस में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पिछला वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट द पावर्स ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार टू एनीवन. नाउ दिस इज इनकरेक्ट because central government cannot delegate powers to anyone. They can only delegate it to the state officer or the central government officer. Second is central government cannot delegate powers of the national cooperatives to anyone. Central government. And the third statement is no state officer can be given power of registration of multi-state cooperative societies, or central government cannot delegate powers of central. Now, out of these four statements, if you see the second statement, the second statement says that central government cannot delegate powers of national cooperatives to anyone. ठीक है ना? Yes, sir. To anyone. And the third statement says that no state officer can be given power of registration of multi-state cooperative societies. तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, सी सर.
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को तो करता है ना सर डेलीगेट पावर्स। इसने बोला अनइवन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है नेशनल कोऑपरेटिव से रिलेटेड पावर किसी को डेलीगेट किया जा सकता है? नो सर, ओनली टू सेंट्रल रजिस्ट्रार। सेंट्रल रजिस्ट्रार सर सेंट्रल रजिस्ट्रार को तो डेलीगेट करते हैं ना। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास तो होता ही है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास तो ये सारे पावर्स होते हैं, उसी के तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करती है। तो जो सेकंड बी स्टेटमेंट है वो भी गलत है। बी स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि एनीवन की जगह पे वहां पे ये होना चाहिए कि सिर्फ स्टेट ऑफिसर्स को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, सेंट्रल को तो किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि किसी भी स्टेट उसको पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता, वो सही है, वो सही बात है। क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार का ये पावर जो होता है, पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो ना ही किसी स्टेट ऑफिसर को डेलीगेट किया जाता है और ना ही किसी सेंट्रल ऑफिसर को डेलीगेट किया जाता है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर सी है। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। छठे क्वेश्चन की अगर बात करें, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मल्टी स्टेट सोसाइटी द एप्लीकेशन किसको दी जाती है? तो इसका सिंपल आंसर है सेंट्रल रजिस्ट्रार। स्टेट रजिस्ट्रार का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वो अथॉरिटी सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंडर दे रखी है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद आता है आपका सेवेंथ क्वेश्चन कि इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मल्टी स्टेट सोसाइटी हाउ मेनी इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच स्टेट मस्ट साइन द एप्लीकेशन। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके मेंबर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, तो कितने इंडिविजुअल्स हर स्टेट से होने चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन को वैलिड माना जाए? कितने एटलीस्ट 50। ठीक है। तो इसमें आपका जो लिमिट दिया हुआ है वो है कि मिनिमम 50 मेंबर्स आपके हर स्टेट से होने चाहिए। मिनिमम 50 मेंबर्स आपके हर स्टेट से होने चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इस केस में होगा वो होगा आपका 50। ये वाला जो है सी पार्ट जो है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन देने का जो प्रोसेस है, उसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी सोसाइटी के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स हैं तो फिर हर स्टेट से आने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स का कम से कम 50 लोगों का ग्रुप आपके उस एप्लीकेशन पे साइन करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन फिर से आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो वो पहला स्टेटमेंट क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी अ मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सही है क्योंकि मेंबरशिप के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्या कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हो सकती है? तो ये भी ठीक है। ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज मेड बाय द मेंबर्स। ये भी ठीक है, मेंबर्स ये एप्लीकेशन लगाते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मल्टी स्टेट सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। ये गलत है। इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं, आपकी मल्टी स्टेट सोसाइटीज भी बनती हैं, गवर्नमेंट भी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, नेशनल कॉर्पोरेशंस भी होते हैं। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई इंडिविजुअल्स जो है वो मेंबर नहीं हो सकते। वो नेशनल कोऑपरेटिव्स के लिए होता है कि जो फेडरल और नेशनल कोऑपरेटिव्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल्स अलाउड नहीं होते। तो जो 8th क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है डी। इसके बाद आता है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ये है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो उस रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने का कितना टाइम होता है? मतलब जब हमने एप्लीकेशन लगाई कि भाई हमें एप्लीकेशन हमने लगाई कि भाई हमें अपनी स्टेट सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटी जो है रजिस्टर करानी है, तो एप्लीकेशन लगाने के बाद गवर्नमेंट के पास कितना टाइम होता है? तो उसका सही जवाब है 4 months। The application has to be disposed of within 4 months of the receipt। मतलब जिस दिन हमने एप्लीकेशन लगाई होती है उसके 4 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर इज बी, विद इन 4 months। इसी से रिलेटेड है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मल्टी स्टेट सोसाइटी कैन बी रिजेक्टेड बाय। अब
इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लगाते किसके पास है। भाई जिसको एप्लीकेशन देंगे वही तो रिजेक्ट करेगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है सेंट्रल रजिस्ट्रार। आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देते हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार ही उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिजेक्शन के केस में वो कम्युनिकेट करता है। अगर रिजेक्ट नहीं करता है और मान लीजिए कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये मान लिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड दैट रजिस्ट्रेशन इज बीइंग डन। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर इज सी, सेंट्रल रजिस्ट्रार। इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है कि हर मल्टी स्टेट सोसाइटी को चलाने के लिए एवरी मल्टी स्टेट सोसाइटी इज रन एज पर द डैश ऑफ द सोसाइटी। बाइलॉज, बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट। अब देखिए बोर्ड की अगर आप बात करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे और प्रेसिडेंट की बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट और बोर्ड, ये तीनों जो अथॉरिटीज हैं ये सोसाइटी को चलाती हैं, लेकिन इन तीनों अथॉरिटीज के पावर्स और इन तीनों अथॉरिटीज को मैनेज करने की जिम्मेदारी, मतलब सोसाइटी को मैनेज करा जाता है सोसाइटी के बाईलॉज के हिसाब से। बाईलॉज का सिंपल मतलब होता है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है, जो सोसाइटी अपनी खुद डिसाइड करती है, उनको हम बाईलॉज बोलते हैं। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर इज ए, दैट इज बाईलॉज। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 12th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाईलॉज को अमेंड कौन करता है। अगर हमें सोसाइटी के बाईलॉज में चेंजेस करने हैं तो उस अमेंडमेंट, उस सोसाइटी के उस बाईलॉज में अमेंडमेंट कौन करेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस कौन से हैं? एक है सेंट्रल रजिस्ट्रार, दूसरा है बोर्ड, तीसरा है जनरल बॉडी, चौथा है स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात तो मल्टी स्टेट सोसाइटी में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, तो आप इस ऑप्शन को तो आप सीधा सीधा काट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है बोर्ड, बोर्ड जो है वो बाईलॉज में अमेंडमेंट करने की रिकमेंडेशन देता है, वो बाईलॉज में अमेंडमेंट खुद नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार अमेंडमेंट नहीं कर सकता आपके बाईलॉज में। जो तीसरा ऑप्शन है आपका जनरल बॉडी, वो सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि जनरल बॉडी का मतलब होता है सोसाइटी का मेंबर्स, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स है उनको मिला के आपकी जनरल बॉडी बनती है। और जनरल बॉडी को ये पावर दिया गया है अंडर द एक्ट that the amendment to the bylaws can be done by the resolution of the general body passed by 2/3 majority of members present and voting। तो आपके बाईलॉज को अमेंड करने का पावर जो है वो जनरल बॉडी के पास होता है। तो आंसर इज सी। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका ये है कि बाईलॉज जो अमेंड हो जाते हैं विच आर बीइंग अमेंडेड, वो कहाँ रजिस्टर होते हैं? बेसिकली बाईलॉज अमेंडेड फॉर द मल्टी स्टेट सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड बाय। जब हम बाईलॉज को अमेंड कर लेते हैं तो उनको रजिस्टर कौन करता है? तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन बैंक, सेंट्रल रजिस्ट्रार, स्टेट बैंक। अब बैंकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को दे रखे हैं अंडर द एक्ट। तो सही आंसर है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो 13 का सही आंसर इज सी। ठीक है, 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद आता है आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन, जो अमेंडमेंट को रजिस्टर करने की जो एप्लीकेशन लगानी होती है वो कितने दिन में लगानी होती है? रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जनरल मीटिंग के बाद, तो भाई कितने दिन में आप वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं अमेंडमेंट को रजिस्टर कराने के लिए? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज, 80 डेज। इसका सही आंसर इज सी। Application for registration of amendments must be made to the central registrar within 60 days from the date of meeting of general body। जनरल बॉडी के मिलने के, यानी कि जनरल मीटिंग के होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको वो एप्लीकेशन लगानी होती है। तो 14th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, विद इन 60 डेज। इसके बाद अगर हम 15th की बात करें तो 15th क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किसी भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को पे एक्शन लेने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया जाता है? 3 months। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं, हमारे मल्टी स्टेट सोसाइटी के बाईलॉज में चेंजेस हो गए हैं, अब हम इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे एक्शन लेने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने।
तो एज पर दी एक्ट सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास 3 महीने का टाइम होता है। उन 3 महीनों में उसको ये बताना होता है कि उसने अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो भेजता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका 15वें क्वेश्चन का है बी, दैट इज विद इन 3 मंथ्स। इसके बाद 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 16वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट का एक्सेप्ट हो गया तो जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है उसको मल्टी स्टेट सोसाइटीज को कितने दिन में भेजा जाना चाहिए? बेसिकली Within आपने 1 month. एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन के ऊपर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने विद इन टाइम पीरियड एक्शन ले लिया, तो उसके बाद एक्ट आपका ये बताता है कि इतने टाइम के पीरियड में आपको